Let's begin our session with prayers to Prabhupada and Lord. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Shri Radha Vrindavan Chandra ki jai Shri Shri Nitai Gauranga ki jai Srila Prabhupada ki jai Nitai Gaur Premanande। कैसे हैं विनायक जी? How are All you? good, bro. Makes sense. ठीक है। So how is your father now? Better now, still bedridden. So he has all the uh, rods and fixatures that will stay there for 3 months. Hmm. So still bedridden, but slowly recovering. Okay. Bedridden. Okay. Still in the hospital only? Then he got discharged on 3rd of June. Oh, At home now. at your place? Yes. Your place. अच्छा अच्छा ठीक है, वेरी गुड। घर पे तो देख सकते हैं कोई भी, है ना? ठीक, चलो, वेरी नाइस। देन Renuka ji, how are you? You're back to Ghaziabad? Yes, I'm back to Ghaziabad. Okay. You're in your parents' place now, Jaipur. Yes, I had. Last Sunday I came back. Schools are started now, or not yet? No. Schools are starting from 1st July. Oh, still a lot of time is there. But my son has his coaching. No, he's in class 12, so he has boards this year. Okay. Yeah, important. They have to take care of. And both of them have exams from 7 July. How come? Both of them have exams. Exams. Yes, so it's 50 marks paper. Both of them have. So the timetable and everything is already given. What is the for what their exams they have? They keep having these exams, so I think it gets added into the final this thing. Some percentage gets added. What is the exam about? But is whatever has been taught so far, so they give the portion also what is going to come for the exam, and then they have to prepare accordingly. Okay. Fine. Anyway, exams. Life is also an exam now. Our life is an exam, and Prabhupada says, if you chant Hare Krishna every day, you will pass the exam. You chant Hare Krishna and become connected to Krishna every day, you'll pass your life exam. Otherwise, it will be difficult. Because life, we have to go on like this, taking life and writing different exams. Life after life. Okay. So let's begin with the new chapter. This is a interview with a devotee who was handling the Back to Godhead magazine and Prabhupada in Mayapur, 1976, March. Okay. So there were some things which Prabhupada pointed out with regard to American Constitution in this conversation. We'll just go through a little carefully. Okay, chaliye. So you start reading, Renuka ji. Okay, the interview. Shall I read the paragraph? First paragraph also. Sri Prabhupada speaks about out to India's Bhavan's journal, a doc. No, that is over, no? Which one you're talking? Okay. You come to the chapter of declaring our independence on God. Bhavan journal is over a long time back. Yes. We did it there. I was there. Yes. You have come to this chapter on declaring. Yes, sorry. Yes. Declaring our independence on God. In a conversation with the Back to Godhead staff, Srila Prabhupada discusses the American Revolution. The Americans say they trust in God, but without the science of God, that trust is simply fictitious. First, take the science of God very seriously, then put your trust in Him. They are manufacturing their own way of governing, and that is their defect.
They will never be successful. There will always be revolutions one after another. There will be no peace. Back to Godhead, Thomas Jefferson put the basic philosophy of the American Revolution into the Declaration of Independence. The important men of the day who signed this document agreed that there are certain very obvious or self-evident truths, the first of which is that all men are created equal. By this, they meant that all men are equal before the law and have an equal opportunity to be protected by the law. Prabhupada ji says, yes, in that sense, men are, as you say, created equal. Back to Godhead, another point in the Declaration of Independence is that all men are endowed by God with certain natural rights that cannot be taken away from them. These are the rights of life, liberty, and so on. Srila Prabhupada ji says, but animals also have the right to life. Why don't animals have the right to live? The rabbits, for instance, are living in their own way in the forest. Why does the government allow hunters to go and shoot them? BTG, they have simply talking about human beings. Prabhupada ji says then they have no real philosophy. The narrow idea that my family or my brother is good and that I can kill all others is criminal. Suppose that for my family's sake I kill your father. Is that philosophy? Real philosophy is Surdham Sarva Bhutanam, friendliness to all living entities. Certainly, this applies to human beings, but even if you unnecessarily kill one animal, I should immediately protest. What nonsense are you doing? Back to Godhead, the founders of American said that another natural right is the right to liberty or freedom. Freedom in the sense that the government doesn't have the right to tell you what kind of job you have to do. Prabhupada ji is saying if the government is not perfect, it should not be allowed to tell people what to do. But if the government is perfect, then it can. So BTG, the third natural right they mentioned was that every human being has the right to pursue happiness. Prabhupada ji says, yes, but your standard of happiness may be different from my standard. You may like to eat meat. I hate it. How can your standard of happiness be equal to mine? So BTG says, so should everyone be free to try to achieve whatever standard of happiness he wants? Prabhupada ji says, no, the standard of happiness should be prescribed according to the qualities of the person. You must divide the whole society into 4 groups. Those with Brahman qualities, those with Kshatriya qualities, those with Vaishya qualities, and those with Shudra qualities. Everyone should have good facility to work according to his natural qualities. You cannot engage a bull in the business of a horse, nor can you engage a horse in the business of a bull. Today, practically everyone is getting a college education. But what is taught at these colleges? Most technical knowledge, which is Shudra education. Real higher education means learning Vedic wisdom. This is meant for the Brahmanas. Alone Shudra education leads to a chaotic condition. Everyone should be tested to find out which education he is suited for. Some Shudras can be given technical education, but most Shudras should work on the farms because everyone is coming to the cities to get an education, thinking we can get more money. The agriculture is being neglected. Now there is scarcity because no one is engaging in producing nice foodstuffs. All these anomalies have been caused by bad government. It is the duty of the government to see that everyone is engaged according to his natural qualities. Then people will be happy. Yes, enough. Okay. Explain what you have understood. In the beginning, Prabhupada ji is saying that who is Thomas Jefferson? Okay, so who is Thomas Jefferson? Thomas Jefferson is the person with whom Srila Prabhupada ji is having the conversation. No. Sorry, it is a magazine Back to Godhead from where this conversation with the Back to Godhead staff. He is one of the staff members of Back to Godhead, where they are discussing the American Revolution, and he's talking about what the Americans trust. So what do they believe in is that they believe in a philosophy. Okay, one second. What was the occasion why this was discussed?
किस ओकेशन में ये डिस्कस हो रहा है, ये पॉइंट अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में क्यों डिस्कशन हो रहा है, और बैक टू गॉड मैगजीन क्या है? Okay, Back to Godhead is the magazine where when Srila Prabhupada ji had gone to US, he was talking about Krishna. He wanted to propagate Krishna consciousness, so he had started this magazine Back to Godhead. वेर इन अमेरिका? Yes. अच्छा, ओके, फाइन। व्हाट अबाउट ऋचा जी, आपको क्या पता है बैक टू गॉडेड मैगजीन का बारे में? क्या पता है आपको? हमने बताया था पहले भी, हाँ बताएं। तो बताइए आपको क्या याद है? प्रभुपाद जी ने, हाँ बताइए। 19 1966 में शायद स्टार्ट करी थी बैक टू गॉड है। 44. 44 ठीक है, सेम थी मैं आपकी। हाँ, तो 44 अभी किसकी याद आ गया रेणुका जी आपको? 44? I just saw my notes and I found the date that it is written 1944. स्पेसिफिक The डेट official magazine, हाँ, when it was started? 1944. 1944, February 14th, the first issue came out. It was a 2-page पेपर। उसमें प्रभुपाद जी अपने जो है रियलाइजेशंस गीता भागवत के ऊपर लिखते थे, और स्वयं जो है लिखते थे, उसको पब्लिश कराते थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करते। तो प्रभुपाद जी को जो है आदेश मिला था उनके गुरु महाराज से। क्या आदेश था? कि आप अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के बीच में ये कृष्ण भावनामृत का, चैतन्य महाप्रभु का संदेश पहुंचाइए। तो प्रभुपाद ट्राई कर रहे थे क्या करना है, कैसे करना है। तो जब गृहस्थ आश्रम में थे प्रभुपाद जी, तो तभी से उन्होंने एक छोटा सा मैगजीन निकाला 1944 में, जो उसमें वो जो है फोर्टनाइटली मैगजीन, 15 दिन में एक बार निकलता है, उसको निकाला उन्होंने। और धीरे धीरे वो जब तक प्रभुपाद जी भारत में थे, कुछ साल तक चले, वृंदावन जाने तक चले। उसके बाद वृंदावन जाते ही उसको उन्होंने, वो दूसरा काम में बिजी हो गए, तो उसको प्रभुपाद जी ने बंद कर दिया। ठीक है, 1954-55 तक चला, उसके बाद वो बंद कर दिया उन्होंने। उसके बाद फिर से प्रभुपाद जी अमेरिका में आए, तो उन्होंने उसको शुरू किया, वापस शुरू किया बैक टू गॉडेड मैगजीन को। अपने शिष्यों के माध्यम से शिष्यों को बोला कि आप लिखिए। तो बैक टू गॉडेड में क्या होता है कि प्रभुपाद जी का टीचिंग्स जो है वो है, और भक्तों का जो अपना रियलाइजेशन, अपना साक्षात्कार जो है वो लिखते हैं, उनका एक्सपीरियंस लिखते हैं, भक्ति में आचरण में क्या क्या है, और जो उनको अच्छा लगा भक्ति आचरण में वो लिखते हैं। इस तरीके से बैक टू गॉडेड इज अ मैगजीन व्हिच इज कमिंग एवरी मंथ। अभी अभी हर महीने आता है, पहले वो हर फोर्टनाइटली प्रभुपाद जी ने निकाला हुआ था। तो एक यहाँ पे क्या ओकेशन है, व्हाट इज द ओकेशन दैट प्रभुपाद जी से कौन मिल रहा है? बैक टू गॉडेड मैगजीन के एडिटर्स मिल रहे हैं, है ना? तो वो क्यों मिल रहे हैं? स्पेशल इंटरव्यू कर रहे हैं प्रभुपाद जी को। व्हाई? American bicentennial, great occasion of celebration. हाँ, अमेरिकन बाइसेंटेनियल सेलिब्रेशन, यानी कि अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के 200 साल हो गया था, उसके मौके पे प्रभुपाद जी के साथ वार्तालाप में लगे हुए थे। एवरी ओकेशन, एवरी बिग ओकेशन, देखिए वो बाइसेंटेनियल यानी कि है, हमने 75 ईयर्स इंडिपेंडेंस को मनाया था ना लास्ट ईयर। हाँ, तो बहुत बड़ा कार्यक्रम था, तो काफी सारे लोगों का जो है उनका ओपिनियन लिया गया, उसको बड़ा बड़ा तरीके से गवर्नमेंट सेलिब्रेट कर रहा था ना। ठीक उसी प्रकार सरकार भी जो है, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज मोस्ट ऑफ हिज डिसाइपल्स, प्रभुपाद जी के जो डिसाइपल्स थे अमेरिका से थे,
तो Prabhupada felt it is appropriate that इस occasion में कुछ बताए बोले. That was the reason. And Thomas Jefferson was that personality in American, who spearheaded the American Revolution with bring out the Constitution for America. That's what it is. They can say like Ambedkar है ना हमारे भारत में, the Constitution of India दिया. इस तरीके से they regard Thomas Jefferson as a person who the philosophy of for properly framing the whole guidelines for American people. इस तरीके से उन्होंने सभी चीजों को एक डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के एक डॉक्यूमेंट में उन्होंने निकाला. ठीक है, दैट इज द होल हिस्ट्री ऑफ दिस. ठीक है, तो द एडिटर ऑफ बैक टू गॉडेड इज ट्राइंग टू पुट द बैकग्राउंड बिफोर ही स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग. तो सभी उन्होंने जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना के अम्बेडकर जी ने सबको जो है साथ में लेके उसको 1950 में किया ना, जनवरी 26, 1950. That is when the Republic Day we celebrate. इस तरीके से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कंट्री में ये बहुत बड़ा उनका एक मौका है कि वो सेलिब्रेट करेंगे इस तरीके से. सो उसमें उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है उसका चर्चा हो रहा है. तो पहला जो पॉइंट उसमें लिखा है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, सभी मनुष्य समान है. What do you mean by this? According to them, it means that they are equal before the law and have an equal opportunity to be protected by the law. कानून के सामने सभी मनुष्य समान है, सबको एक ही तरीके का जो है रक्षा मिलना है कानून से. ऐसे नहीं कि भेदभाव नहीं होना है. कि अमेरिका में आप याद करेंगे तो देयर इज ऑलवेज द रेसिज्म प्रॉब्लम, ब्लैक व्हाइट, स्लेवरी, सब कुछ बहुत था. थोड़ा बहुत हमें हिस्ट्री समझना है. तो ये जो हम पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा वी कैन अप्रिशिएट इट. तो फर्स्ट थिंग दे हैव डिक्लेयर्ड इन द दे हैव डन इन द डिक्लेरेशन ऑफ, जस्ट लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनका वहां पे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. उनका जो डॉक्यूमेंट को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल. तो प्रभुपाद जी हाँ बोलते हैं, ये तो भगवान ही बोलते हैं गीता में. ठीक है, तो नेक्स्ट एक और जो नेक्स्ट पॉइंट जो क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में, हर मनुष्य को, एवरी मैन, ऑल मेन आर एंडोर्ड बाय गॉड विद सर्टेन नेचुरल राइट्स दैट कैन नॉट बी टेकन अवे. सबका एक जो है अधिकार मिलता है, स्वाभाविक तरीके का अधिकार मिलता है जो हम उनसे छीन नहीं सकते. इसे कुछ अधिकार का वर्णन करते हैं. व्हाट आर द राइट्स, नेचुरल राइट्स, राइट. फर्स्ट पॉइंट दिस इज राइट टू लाइफ. पहला पॉइंट है राइट टू लाइफ, है ना. तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, रेणुका जी? प्रभुपाद जी कहते हैं बट ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ एनिमल्स का भी राइट है टू. सो बट वही ऐसे क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि जैसे इंसान आए हैं, जानवर भी लिविंग बीइंग है. फॉर इंस्टेंस ही गिव्स एन एग्जांपल कि एक रैबिट जो है जंगल में अपने तरीके से रहता है, लेकिन मनुष्य वहां जाकर के वहां उनका शिकार करता है, जो कि सही नहीं है. तो वो एडिटर बोलता है नहीं ओनली मनुष्य के बारे में बोल रहे हैं. व्हाट डज प्रभुपाद से फॉर दैट? then he says that he's saying that this is not a real philosophy. अगर आप केवल इसके बारे में बोल रहे हैं कि अगर मैं ये बोलूं कि my father is my father and your father is not important and I will kill your father, so he gives an example कि वो गलत है. So is that a philosophy that I will only take care of my people and I will not take care of anybody else?
सो रियल फिलोसफी वो बोलते हैं कि फ्रेंडलीनेस टू ऑल लिविंग एंटिटीज, वो रियल फिलोसफी है कि यू शुड बी लिविंग एंटिटीज। जानवरों को भी वो लिविंग एंटिटीज ही मान रहे हैं और ह्यूमन को भी मान रहे हैं, तो इसलिए दोनों को ही ये राइट है दैट वी नीड टू बी फ्रेंडली टू ऑल लिविंग एंटिटीज। यानी कि प्रोपा जी ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है कितना दोषपूर्ण है, फुल ऑफ फॉल्ट्स। आपने ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, खाली अपने लिए बनाया, बाकी जानवर जंतु कोई नहीं है क्या? उनको बस आप उनको जो है मार दें, मारते रहें और उनको खाते रहें, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये क्या हुआ? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ ना केवल मनुष्य को है, हर जीवात्मा का है राइट टू लाइफ। एक मच्छर का भी राइट टू लाइफ है। अंडरस्टैंड? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद बोल रहे हैं। गीता में भगवान ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं। सुहृदम मनुष्य भूताना, भगवान नहीं बोलते, भगवान बोलते हैं सुहृदम सर्वभूताना। हर जीवात्मा का हक बनता है कि वो जीवित रहे। भगवान बोलते हैं हर जीवात्मा मेरे बच्चा है, कोई भी रूप में हो, स्वरूप में हो। हाँ, the living entity may be in the form of an animal or plant, tree, any form. हम बीज प्रदप पिता, भगवान बोलते हैं गीता में। तो पॉइंट ये है कि बिना कुछ वजह के कोई भी दूसरा जीव जंतु का हत्या करना पाप है। राइट टू लाइफ मीन्स जीवन जीने का अधिकार सबका है, ना केवल मनुष्य के लिए है। तो ये मनुष्य का बारे में केवल हम सोचते रहेंगे तो वास्तव में वो ठीक नहीं है। इसलिए तो इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं आजकल, युद्ध हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना जो है जिम्मेदारी नहीं समझा है ना। हम सोच रहे हैं कि केवल हम जीना है, बाकी सबको बाढ़ में जाए। तो प्रकृति देख रही है, भगवान का जो प्रकृति देख रही है, और वो भी जो है रिएक्शन देगी, लॉस ऑफ कर्मा। आपने जानवरों को स्लॉटर हाउस, कसाई खाने में इतना जबरदस्ती मारा है, तो आपको भी मारना है, मरना है। देखिए, एक प्लेन क्रैश, विद इन नो टाइम, फ्यू मिनट्स सब जल गया। 240 लोग, 242 लोग खत्म। One shot, yes, that was a वन शॉट ओवर। ऐसे बहुत सारे, इससे पहले क्या हुआ, स्टैम्पीड हुआ, उसमें कितने लोग मरे पता नहीं। हाँ, वो जो पहलगाम में शूटिंग हुआ। तो ऐसे लोग जब ऐसे कार्य करते हैं ना, जो अपना बस हमें जीना है, बाकी सब मरने दो, तो लॉस ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम है, भगवान के जो नियम है वो वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिंजेंट। रूपा जी वही बोल रहे हैं। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन इतना, इसमें इतना फॉल्ट्स है, इतना दोष है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया आपने? क्योंकि प्रभुपाद इधर वो एडिटर क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि दे ऑल ऑफ द बिग पीपल इन अमेरिका ये डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया बिकॉज देर ऑल सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। सेल्फ एविडेंट ट्रूथ यानी कि वो, जैसे हम सूरज को देखते हैं वो प्रकाशमान है, किसी को इसे साबित करने की जरूरत नहीं कि वो प्रकाशमान है। ऐसे उनको लग रहा है कि हमने जो लिखा है वो सब कुछ ठीक है। प्रभुपाद जी दिखा रहे हैं उनकी गलती कितने कितने हैं। तो प्रभुपाद यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य से निर्मित कुछ भी चीज हो, वो नियम हो, कानून हो, वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ दोष रहता है। क्योंकि हाँ, टू एरर इज ह्यूमन। 4 तरीके के दोष है ना मनुष्य में, कौन से हैं? हाँ ऋचा जी, व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? हर मनुष्य में 4 तरीके के दोष होते हैं। व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स? हाँ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपका श्रद्धावान लेवल का क्वेश्चन है। वो ईटिंग, स्लीपिंग। अरे क्या है ये, दोष थोड़ी बोलते हैं इसको, वो जीवन की आवश्यकताओं को बोलते हैं। हर जीवात्मा का 4 आवश्यकताएं, ईटिंग, स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग। 4 दोष हैं, 4 डिफेक्ट्स, 4 फॉल्ट्स इन एवरीबडी, इन एवरी ह्यूमन बीइंग, 4 imperfections। अच्छा, हाँ, बताइए विनायक जी। Imperfection. हाँ,
आपको Yes, पता है sir. बस आपको याद नहीं आ रहा है। हाँ? क्या रेणुका जी, याद आया? हम गलती करते हैं, हाँ मेक और मिस्टेक्स, हाँ फिर वी आर ऑलवेज कवर्ड विथ माया। तो माया बड़े में हम घिरे रहते हैं, तो हमारा वो माया वाला इल्यूजन हमेशा ही रहेगा। और देन और हम चीटिंग टेंडेंसी हर इंसान में होती है। हम्म वी आर ऑलवेज चीटिंग। ओके, एंड हमारे जो फाइव सेंसेस है, वी आर इन कंट्रोल ऑफ द फाइव सेंसेस। यू आर नॉट इन कंट्रोल, आई मीन वी आर नॉट एबल। दे आर imperfect Perfect. sensors. Yes, they are imperfect senses. Yes. So गलती करना, टू मेक मिस्टेक्स, हाँ, धोखा देना, चीटिंग प्रोपेंसिटी, टू बी इन इल्यूजन। सबसे बड़ा इल्यूशन क्या है? माया। मैं शरीर हूँ सोच रहा हूँ, मैं उस तरीके से जीवन चला रहा हूँ। और चौथा है, मेरा इंद्रिय जो है परफेक्ट नहीं है, मुझे Okay. दिखता नहीं इसलिए मैं चश्मे पहना हूँ। सबसे दूर वाला चीज दिखता नहीं, सबसे पास हर इंद्रिय का कुछ अपना अपना लिमिटेशन है। Okay. हमारा इंद्रिय परफेक्ट नहीं है। हाँ? तो दिस आर द फोर डिफेक्ट्स। तो हर मनुष्य में चार कमियां रहते ही है। तो उनसे जो निकलेगा, कुछ भी चीज निकलेगा, वो दोषपूर्ण होगा। दैट इज द पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट। ठीक है? तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? वो दिखा रहे हैं, प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली दिखा रहे हैं कि आपके जो अमेरिकन का जो फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने अपनी तरीके से वो एकदम फर्स्ट क्लास बनाया होगा अपने हिसाब से। उसमें इतना सारा दोष है। देखो, राइट टू लाइफ में क्या बोल रहे हैं? खाली मनुष्य को राइट टू लाइफ है क्या? हर जीवात्मा को राइट टू लाइफ होना है। गलत हो गया। द नेक्स्ट राइट क्या है? राइट टू लिबर्टी, है ना? फाउंडर्स ऑफ अमेरिका सेड दैट अनदर नेचुरल राइट, ये सब स्वाभाविक अधिकार है हर जीवात्मा का, बोल रहे हैं। राइट टू लिबर्टी और राइट टू फ्रीडम। हम सब स्वतंत्र हैं, सबको स्वतंत्र रहने का एक अधिकार है ना? तो यानी कि वो समझाते हैं एडिटर कि सरकार को ये नहीं बोलना कि आपको कौन सा जो है प्रोफेशन लेना है, कौन सा जॉब करना है। बस सबको अपना अपना अधिकार है, जो करना है करेंगे। Hmm. तो ये बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि ही इज टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट परफेक्ट अगर है तो हम उनकी बात सुनेंगे, अगर परफेक्ट नहीं है तो हम नहीं सुन सकते। देन तो सिमिलरली हमारे बच्चों को क्या करना, क्या नहीं करना, हाँ, उनको फ्रीडम देना है। हाँ, और हमें जो क्या कुछ बोलना है उनको, बोलिए ऋचा जी। राइट टू फ्रीडम। बच्चा बोलेगा ना, आपका बेटा बोलेगा, क्या मम्मी इतना बोलते हैं, मैं क्या करना करूंगा ना। हाँ, देखिए अमेरिका में राइट टू फ्रीडम है। कल बोलेगा वो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ाएंगे स्कूल में, तो बोलेगा राइट टू फ्रीडम। हाँ, क्या करें? एक्चुअली दे इवन कंप्लेन इन द पुलिस आल्सो। बहुत हाँ, सारे इंडियन वहां अरे लंदन में, यूके में, इंग्लैंड में क्या है ना, टीचर्स बच्चों को डांट भी नहीं सकते हैं। Um, डांटेंगे ना, वो पुलिस कंप्लेंट हो जाएगा। तो बहुत ठीक है, समझाना पड़ेगा बच्चों को, डरते हैं टीचर्स। ऐसे हालत हो गया है। राइट टू फ्रीडम। हाँ इवन द इंडियंस जो प्रभु जी, जो इंडियंस रहते हैं ना वहां पे, वो यहाँ आते हाँ, तो बताते हैं कि वी कुड नॉट इवन स्कोल्ड आवर चिल्ड्रन, सी वो वहां सी पे इन्फ्लुएंस में थे। हाँ, अभी इधर आ गए तो एक हम- थप्पड़ लगा के उनको हम बैठा देते हैं। हमारे भाई, मेरा मेरा मम्मी पापा है ना, इतना मुझे टप्पड़ दे के इतना डांट के सिखाते थे। हाँ, तभी तो हमने कुछ सीखा। हाँ, आजकल के बच्चे इतना बिगड़ गए हैं, उनसे बात करना भी बहुत मुश्किल है। नो, दे नो दैट ये ना अगेंस्ट द लॉ है, तो वो लोग धमकी भी देते हैं दैट वी विल कॉल द पुलिस। इसलिए बिगड़ गए ना पूरा बच्चे। एनीवे, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? तो मेरा एग्जाम्पल, आंसर दीजिए ना ऋचा जी। हाँ, आपका बेटा बोलेगा राइट टू फ्रीडम में, मम्मी क्या है, आप क्या बोल रहे हैं? आपका बात नहीं सुनना है मुझे, मुझे जो करना है करूँगा। हाँ, ठीक नहीं, जो कर है। हाँ? सही है, गलत है? हाँ, गलत है।
गलत है, हाँ, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो कि प्रोपा सही यही क्या बोल रहे है। हैं, प्रोपा यही बोल रहे हैं कि बच्चों को कुछ पता नहीं है, वो तो अज्ञानी है ना। हाँ, वो तो नादान होते हैं, उनको समझाना सिखाना माता पिता का काम है, बड़ों का काम है। और बड़े अपने आप अज्ञानी है तो क्या करें। तो इसलिए हाँ, माता पिता, हाँ, जो जो गार्डियंस है उनको गीता समझना है, आध्यात्मिक ज्ञान होना है उनको, नहीं तो वो भी अनपढ़ रहेंगे अज्ञानी रहेंगे। ये बात है। तो प्रभुपा जो ही बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ही परफेक्ट नहीं है तो वो क्या बोलेगा। गवर्नमेंट परफेक्ट है तो सिखा बोल सकता, गवर्नमेंट को ही पता नहीं है क्या करना है। समझ रहे हैं बात क्या बोल रहे हैं प्रभुपा जी। तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, है ना। तो नहीं, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम, लाइफ। राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम। ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, व्हाट इज थर्ड राइट। प्रभुपाद जी बोलते हैं, सॉरी, एडिटर बोलते हैं, राइट टू परस्यू हैप्पीनेस। मुझे जो अच्छा लगेगा, जो खुशी आएगा मैं कर सकता हूँ, वो मेरा राइट है। हाँ, मैं पूरा रास्ते में जो है शराब पी के घूमूं, वो मेरा मर्जी है। ऐसा है ना, एक एक मुझे याद है बचपन में कुछ गाना सुना था, मेरा मर्जी मैं जो चाहूँ करूँ है ना। Oh, वॉट एवर, राइट टू हैप्पीनेस मीन्स वॉट एवर आई वांट आई विल डू। इफ आई एम गोइंग हाफ नेकेड, डोंट आस्क मी। मुझे डांस करके जाऊं रोड में, डोंट आस्क मी। राइट टू परस्यू हैप्पीनेस तो प्रभुपा जी क्या बोलते हैं उसके लिए? देखिए क्या क्या Prabhupada, राइट बनाया प्रभुपा जी, उसको शास्त्र के हिसाब से क्या समझा रहे हैं ये हमें समझना है। ठीक है, बताइए। मुझे आजकल रोड पे रील बना रहे हैं सब लोग हाँ, रोड क्या पे बोल रील रहे हैं? बनाते हैं, खड़े होकर वीडियो शूट नहीं करते नहीं, हैं वही डांस वो करते बोलते हैं, हुए मुझे मुझे आनंद मिलता है इसमें खुशी मिलता है, हाँ? हर जगह लोग मोबाइल लेके पूरा रील बनाने में लगे हैं। और उसमें कितना लाइक्स आया, क्या क्या, वो लोग बिजी हो गए इसी में, रील बनाओ रील देखो बस उसी में मजा आ रहा है उनको, हाँ? चलिए, तो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, व्हाट इज प्रभुपाद टेलिंग? standard of happiness is different from one person to other. So your standard of happiness जो है, अगर आप मीट खाते हो and you feel happy, it's not necessary कि मैं भी मीट खाऊं and I will feel happy. Because One man's food is one man's food is happiness and other man's food may no. There's a saying, no, English. One man's food is, you know the saying, proverb. One one man's food is, man's, no, I don't know. one man's food is another man's poison. Okay. It is a saying like this in English. एक कहावत है इंग्लिश में। One man. एक आदमी का जो खाना है दूसरा आदमी का वो poison है, जहर। हाँ, जहर है फॉर एग्जाम्पल, किसी को टीबी है, हाँ, हम नॉर्मल आदमी हैं, हम तो पराठे खाएंगे। वही आप टीबी पेशेंट को आप पराठा दें, क्या होगा, वो मर जाएगा। हाँ, और हम तो नो मैंगो जूस पी रहे हैं, वही जो मैंगो जूस जो है आप देंगे जॉन्डिस आदमी को तो मर जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वन मैन्स फूड अनदर मैन्स पॉइजन। तो ये स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस, हर आदमी अपने तरीके से सोचता रहेगा, ये मेरा स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस है, ये मेरा स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस है। तो कैसे एक लेवल पे कैसे हम स्टैंडर्ड में आ सकते हैं? क्या स्टैंडर्ड है एक्चुअली? जो मैं सोचता हूँ ठीक है क्या? हम्म, हम्म, प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस का क्वालिटी एक व्यक्ति के क्वालिटीज पर निर्भर करना चाहिए, और वो डिवाइड होना चाहिए चार ग्रुप में। आप सोसाइटी को डिवाइड कीजिए, ब्राह्मण क्वालिटीज, फिर क्षत्रिय क्वालिटीज, वैश्य क्वालिटीज एंड शूद्र क्वालिटीज। तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर। एवरीवन, सबका अच्छा क्वालिटी हो अकॉर्डिंग टू हाँ, सबका अपना वेट 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 potential वेट, होता है। हाँ, प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं इधर बेसिकली कि ऐसा नहीं कि हम अपने आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस अपने तरीके से करें, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। जैसे रोड में ट्रैफिक सिग्नल हम फॉलो नहीं करें, अपने हिसाब से चले मेरा मुझे खुशी आता है ना, मैं अपने स्पीड में चलूंगा, मैं अपने तरीके से चलूंगा,
ऐसे थोड़ी चलता है। रोड का जो पूरा रूल्स हमें फॉलो करना है, नहीं करना है, करना है। हाँ, हम रोड में चलते हैं तो गाड़ी में हमारा उसका रजिस्ट्रेशन होना है, उसका जो जो रूल्स ट्रैफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से चलने सब होना है, और आपका लाइसेंस होना है, और जब सिग्नल आते हैं रोकना है, जहाँ पे क्या स्पीड है उस पे उसके हिसाब से चलना है। नहीं नहीं, मुझे बहुत आनंद आता है राइट टू हैप्पीनेस। मैं जैसे चाहूँ ऐसे चलूंगा ना, मैं वन वे पे उल्टा चलूंगा। हाँ, मैं गाड़ी जब सिग्नल आएगा रुकूंगा नहीं, ये थोड़ी होता है। See, there is no question or there is no standard of happiness. When you start following in your own way, there will be clash, there will be chaos. पूरा अस्त व्यस्त हो जाएगा, हलचल मच जाएगा पूरा संसार में। तो प्रभुपाद जी ये बोलना चाहते हैं कि एक व्यवस्थित तरीके से हमें अपना कार्य करना है। हर व्यक्ति का एक जगह पे एक नियमित तरीके से उसको अपना कर्तव्य करना है। तो यही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। समाज को, हमारा जो सोसाइटी को 4 वर्ण में विभाजन किया हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्तव्य है, नियत कर्तव्य है, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, है ना। तो ऐसे नहीं कि हम कुछ भी चाहे, जो चाहे मन मर्जी करे, वो भी गलत है। रूपा ये बोलना चाहते हैं, है ना। तो हाँ, आपको अपने कार्य में आनंद आता रहेगा, परंतु वो कार्य आपके लिए आपके गुण के हिसाब से ठीक है नहीं है, समझना है फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रभुपाद जो एग्जाम्पल देते हैं, देखिए इधर एक बेल जो है, उसे आप घोड़े का काम में लगाएंगे, हाँ, और घोड़े को बेल के काम में लगाएंगे, तो काम दोनों में काम जमेगा नहीं, है ना। जो काम किसको करना है वो इसको करना है। हाँ, विनायक जी कल से खाना बनाएंगे घर में, तो क्या होगा, सबको उपवास रहना पड़ेगा, क्या विनायक जी? आई एम राइट और रॉन्ग? राइट राइट बनाएंगे ही राइट, नहीं। राइट। बात यह है, तो जो काम किसको करना है उसको करना है। एक बार प्रभु जी मेरे को कोरोना हुआ था, मैंने इनको कहा मेरे को हाँ, चने ला के दे दो, तो इन्होंने ऐसे ही मतलब भीगा हुआ चना उसको बॉईल भी नहीं तो मेरे सामने ला के रख दिया था वो देखिए। ज्यादा फायदा करता है। कि इसको खा लो। तो आप भी है ना ऋचा जी, कुकिंग के लिए ना, हाँ, ऐसे कच्चा दाल, कच्चा चावल बना, खिचड़ी बना लीजिए अपने आप, बोलिए। तो खिचड़ी बन जाएगा क्या। तो बात यह है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे हर व्यक्ति का अपना एक गुण कर्म होता है, उसके हिसाब से उसे कार्य करना है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं आजकल के समय में सबको एजुकेशन दिया जाता है, स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन। तो क्या सिखाया जा रहा है अभी स्कूल में, कॉलेज में? शूद्र एजुकेशन। शूद्र मीन्स टेक्निकल वर्क, इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब शूद्र एजुकेशन है। टेक्निकल, मैकेनिकल इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, वो इंजीनियर, ये इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, ये सब प्रभुपाद जी बोलते हैं शूद्रा। शूद्रा यानी कि जब वो उनको एजुकेशन हो जाएगा तो उन्हें एक जॉब ढूंढना है। जब तक वो जॉब नहीं मिलेगा उनके एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो वास्तव ज्ञान क्या है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें वैदिक ज्ञान को ग्रहण करना है। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि आजकल के समय में केवल आप टेक्निकल एजुकेशन लेके पैसे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हाँ, तो जो जो एग्रीकल्चर है, हाँ, उसको सब भूल रहे हैं, सब लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इतना सारा जो है खाने का अभाव हो रहा है, स्कैर्सिटी हो रहा है, वो सारे जो है जो है जो है सिस्टम में इतना हेरा फेरी हो रहा है। सो गवर्नमेंट को पहले देखना है कि हर व्यक्ति को किस तरीके से अपने हर व्यक्ति का गुण कर्म के हिसाब से उसे कार्य में लगाना है। ऐसा नहीं कि मुझे चाहिए बस मुझे बैठा रहूंगा ना, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे बहुत आनंद मिलता है। मैं हर दिन पूरा 24 घंटा मोबाइल में लगा रहूंगा, आनंद मिलता है। ये थोड़ी चलता काम, नहीं चलता है ना। तो ये बात रूपा जी बोलते हैं, हाँ। So this is what Prabhupada is trying to tell us, that everybody as a human being we have come up with one specific nature। एक स्वभाव से हम पैदा हुए हैं, उस स्वभाव को जानकर हमें उस कार्य में हमें लग जाना है, ताकि हम अपने आप को मेंटेन करें और समाज को कुछ कंट्रीब्यूशन दें। ये पॉइंट है। ऐसे नहीं कि परस्यू हैप्पीनेस, तो मुझे बस
ऐसे कुछ नहीं करना है, बस गवर्नमेंट से फ्री रेशन मिलेगा, फ्री पैसा मिलेगा, बस बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं है ना। प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जो जो कुछ काम नहीं करते उनके दिमाग में केवल शैतान का बातें विचार विचार आते रहते, ये बात। चलिए नेक्स्ट, ऋचा जी आप पढ़िए। इफ द गवर्नमेंट आर्टिफिशियली पुट्स, भगवत दर्शन तो यदि शासन कृत्रिम भाव से सभी मनुष्यों को एक समूह में रखता है तो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हाँ श्रील प्रभुपाद जी, नहीं, ये अस्वाभाविक है और इससे अव्यवस्था पैदा होगी। भगवत दर्शन, अमेरिका के संस्थापकों ने वर्गीकरण पसंद नहीं किया क्योंकि उन लोगों को इसका इस विषय में बहुत कटु अनुभव था। क्रांति के पहले अमेरिकन लोग राजाओं के द्वारा शासित थे, परंतु राजा लोग सदा ही अत्याचारी और अन्यायी होते थे। श्रील प्रभुपाद, इसका कारण यह है कि उन राजाओं को राजर्षि के रूप में प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। वैदिक सभ्यता में बालकों को जीवन के आरंभ से ही प्रथम श्रेणी के ब्रह्मचारियों के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था। वे गुरुकुल अर्थात गुरु के विद्यालय में जाते थे और आत्मनियंत्रण, स्वच्छता, सत्यता तथा ऋषियों के कई गुणों को सीखते थे। उनमें से सर्वोत्तम बालक बाद में देश का शासन करने के योग्य होते थे। अमेरिकन क्रांति का कोई विशेष महत्व नहीं है। मुख्य बात तो यह है कि जब लोग दुखी हो जाते हैं तो वे क्रांति कर देते हैं। अमेरिका में यही हुआ था और यही फ्रांस तथा रूस में भी हुआ। अमेरिकन क्रांतिकारियों ने कहा कि यदि सरकार लोगों पर ठीक से शासन करने में असफल रहे तो लोगों को यह अधिकार है कि उस सरकार को वह भंग कर दें। शील प्रभुपाद, जी हाँ, जैसे निक्सन का उदाहरण ले, लोगों ने उनको पद से हटा दिया, परंतु यदि वे एक निक्सन के स्थान पर दूसरा निक्सन रख देते हैं तो उसका क्या महत्व। उनको ये अवश्य जानना ज्ञान होना चाहिए कि निक्सन के स्थान पर किस प्रकार ऋषि के गुणों से युक्त नेता चुना जाए, क्योंकि लोगों में न तो उस प्रकार का प्रशिक्षण है और न ही संस्कृति है। वे एक निक्सन के बाद दूसरे निक्सन को चुनते जाएंगे और कभी भी सुखी नहीं होंगे। लोग सुखी बन सकते हैं, सुखी बनने का सूत्र भगवत गीता में है। पहली वस्तु जो उन्हें जाननी चाहिए वह यह है कि उनको ये ज्ञात हो कि यह भूमि भगवान की है। अमेरिकन लोग ये क्यों दावा करते हैं कि भूमि उनकी है। जब सबसे पहले विदेशी आबाद होने के लिए अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने कहा यह भूमि ईश्वर की है, अतः हमें यहाँ रहने का अधिकार है। तो अब ये लोग दूसरों को इस भूमि पर रहने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं? यह उनकी कैसी नीति है? बहुत से देश आवश्यकता से अधिक घनी आबादी वाले हैं। अमेरिकन शासन को चाहिए कि वे उन लोगों को अमेरिका में आने दें और उनकी भूमि को जोत कर अन्न उत्पन्न करने की सुविधाएं प्रदान करें। ये लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इन लोगों ने दूसरों की संपत्ति बलपूर्वक छीन ली है और अब बल के द्वारा ही दूसरों को यहाँ आने से रोक रहे हैं। इसके पीछे कौन सा दर्शन है? भगवत दर्शन, कोई दर्शन नहीं है। शिल प्रभुपाद, शठता ही उनका दर्शन है। वे बलपूर्वक संपत्ति छीन लेते हैं और उसके पश्चात कानून बनाते हैं कि कोई भी दूसरे की संपत्ति बलपूर्वक नहीं ले सकता। तो ये लोग चोर हैं। ये लोग भगवान के पुत्रों के द्वारा भगवान की संपत्ति का उपयोग करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के संघ के अन्य देशों को इस पर सहमत होना चाहिए कि जहां भी पर्याप्त भूमि हो उसका उपयोग मानव समाज के द्वारा अन्न उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। शासन कह सकता है ठीक है, आपके यहाँ घनी आबादी है, आपके लोग यहाँ आ सकते हैं, हम उनको भूमि देंगे और वे अन्न उत्पन्न कर सकते हैं। हम देखेंगे इसका कितना अद्भुत परिणाम होगा, परंतु क्या वे ऐसा करेंगे? नहीं। तब फिर उनका क्या दर्शन रहा? शठता, मैं बलपूर्वक भूमि छीन लूंगा और तब मैं दूसरों को यहाँ आने नहीं दूंगा। बस बस ठीक है। अभी जो इसराइल ईरान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है, युद्ध शुरू नहीं हुआ, युद्ध करवाया जा रहा है। ठीक है। अमेरिका, तो अमेरिका का जो बुद्धि क्या है इससे पता चल रहा है कि वो शठता पूर्वक यानी रोगिज्म, ये मेरा है, आपका जो ईरान में जो जो ऑयल निकल रहा है वो हमारा है, वो हमें देना है। अरे आपका देश में जो आएगा आप ले लो ना, दूसरे देश में क्यों देखना चाहते हो, लेना चाहते हो? तो ये पॉलिसी बना के रखा है उन्होंने। तो अपने लिए एक एक पॉलिसी है, दूसरे के लिए एक और पॉलिसी है। ये जो इस तरीके का जो है षड्यंत्र रचते हैं, ये गलत है। तो यहाँ पे सो प्रभुपाद इज सेलिंग राइट टू हैप्पीनेस, हमारा जो अधिकार है आनंददायक जीवन बिताना, ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा गुण कर्म के अनुसार हमें निर्धारित कर्तव्य जब करेंगे तभी हम आनंद में रह सकते हैं।
ये बात बताते हुए प्रभुपाद जी बोलते हैं, तो प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि समाज में वर्णाश्रम का विभाजन होना है, तभी तो समाज में एक आनंद का वातावरण रहेगा। तो क्वेश्चन पॉइंट ये था बीटीजी एडिटर का कि सरकार आर्टिफिशियली घटक तरीके से सबको एक ही तरीके के वर्ग में, क्लास में डालेगा तो क्या है? प्रभुपाद जी बोलते हैं अस्वाभाविक है। हाँ, तो अव्यवस्था जो उत्पन्न करेगी, है ना। तो तो आगे क्या बोलते हैं, अमेरिकन फाउंडर्स की जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा उन्होंने, ये तो अलग अलग वर्ग का जो है डिवीजन, हाँ, विभाजन का वो मानते नहीं थे, हैं? इसलिए तो बड़ा क्रांति हुआ, अमेरिकन क्रांति, है ना। हाँ, जब राजा राजशाही चल रहा था, हाँ, तो काफी जो है दुष्ट थे, तो इसलिए ऐसा हुआ। तो रूपा जी बोलते हैं वास्तव में राजा महाराजा का जो शासन में, जब तक राजा को राजऋषि के रूप में, गीता में भगवान बोलते हैं राजऋषि, यानी कि केवल राजा नहीं है, शासन के साथ 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 वो प्रजा को आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी उनका मार्गदर्शन देंगे, इनको बोलते हैं राजऋषि ना। इस तरीके से सबको वैदिक संस्कृति में शुरुआत से, बचपन से उनको ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता था, आपको क्या करना है, कैसे करना, आपको जीवन का उद्देश्य क्या है, ब्रह्मचर्य का, मन का नियंत्रण का, इंद्र नियंत्रण का, शमो दम तपस्ति तितिक्षा आर्जवम सत्यम शौचम, ऐसे लक्षण बताते हैं भगवान गीता में 18वें अध्याय में। तो ऐसा ब्राह्मणिकल ब्राह्मण के जो लक्षणों का प्रशिक्षण दिया जाता था, है ना। उसके बाद एक तरीके का फाउंडेशन होने के बाद उनको जो उनका जो गुण है उस तरीके से वो आगे बढ़ सकते थे नेक्स्ट। तो प्रभुपा जी बोलते हैं जब भी लोग देख रहे हैं कि मेरे इच्छा के अनुरूप चीजें नहीं चल रहे हैं, तो लोग भड़क उठते हैं, वो क्रांति करते हैं ना। अमेरिका, फ्रांस, रशिया में ऐसे हो रहा है, आज भी यहाँ पे भी हो रहा है, इंडिया में भी। जब हम नहीं चाहते तो बस तुम क्रांति करो, तुम आवाज उठाओ, ये थोड़ी होता है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे निक्सन केस, निक्सन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ अमेरिका, है ना। पहले तो निक्सन प्रेसिडेंट बना लिया उन्होंने, उसके बाद उसी को नीचे नीचे उन्होंने खींच दिया, है ना। तो एक और आदमी को आप लेके आएंगे, फिर भी वही काम करेगा, वो भी आपका जो है जो आपका मांगे हैं उसको पूरा नहीं करेगा। इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि जब तक आप जो चुनेंगे लीडर, जो आपका प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, वो क्वालिफाई नहीं, तब तक आप इस तरीके से आप चेंज करते रहेंगे। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है आनंद का, देखिए वही क्वेश्चन का कंटिन्यू हो रहा है, राइट फॉर हैप्पीनेस, ये सुख आनंद का जो सूत्र है भगवत गीता में भगवान देते हैं। क्या बोलते हैं भगवान प्रभुपाद जी? हाँ, शांति सूत्र क्या है, आनंद का सूत्र क्या है ऋचा जी? भगवान क्या बोलते हैं गीता में, शांति सूत्र? हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, गीता में शांति सूत्र है ना, क्या बोलते हैं भगवान? फॉर्मूला फॉर हैप्पीनेस। हाँ, याद नहीं है प्रभु जी, यही आनंद है हमारे। याद नहीं आ रहा है, बस हफ्ते में एक बार किताब पकड़ते हैं। याद आएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो बस हरे कृष्णा, ऐसा नहीं Peace चलेगा। formula. हाँ, Peace formula. हाँ, पीस फार्मूला क्या है, शांति सूत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। Everything belongs to God. ओके, And हमारा कुछ भी नहीं है, and जो कुछ है भगवान का ही दिया हुआ है। और तो पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2,
इस बुक में नहीं। नेक्स्ट चैप्टर। यस रेणुका जी, आपको याद है? व्हाट इज द अल्टीमेट प्रोक्लाइम ऑफ फिजिक? हरे कृष्णा। No, Prabhuji, I am not very clear on this. Why? You don't know the peace formula? We have studied, we studied before only, ना? एक चैप्टर पहले ही पढ़ा था हमने पीस फार्मूला। हाँ, पढ़ ही रहे हैं बार बार इसके बारे में, पीस फार्मूला के बारे में। हाँ, भगवत गीता में 5th चैप्टर में वर्स 29 में बोलते हैं प्रभु भगवान, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम। याद रखिए 3 पॉइंट है। सभी एक्टिविटीज का, सभी कर्मों का भोक्ता मैं हूं। कुछ भी हो, यज्ञ, तपस्या, कुछ भी कार्य हो, उसका भोक्ता, एंजॉयर। आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सेकंड, सर्वलोक महेश्वरम। सभी ग्रह लोकों का, सभी संपत्ति का, सभी देवताओं का स्वामी मैं हूं, मालिक मैं हूं। जब कोई I बोलता है मैं इस संपत्ति का मालिक हूं, तो ऑटोमेटिकली इज एंजॉयर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। मैं इसका मोबाइल का मालिक हूं, मैं बोलूंगा तो मैं आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस आल्सो, राइट, एज अ प्रोप्राइटर, है ना? तो सब चीजों का जो जो देख देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं, सभी का स्वामी मालिक भगवान है, प्रभु मालिक भगवान है। एंड ही इज द एंजॉयर ऑफ एवरी एक्टिविटी व्हाट वी डू। Thirdly, he is the best friend, best well-wisher of everybody. Okay? So, Sarvaloka Maheshwaram, Suhridam Sarvabhutanam, Suhrid, Bhokta, Maheshwara, and Suhrid. This is the understanding about Krishna's position. भगवान का ये पोजीशन है। तो हम क्या कर रहे हैं इस संसार में? इन्हीं 3 जो भगवान के जो वास्तव उनका स्थान है, उसका अनुकरण कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। हम चाहते कि जो हम कार्य करेंगे उसका फल हम भुगतेंगे। हाँ, और हम सोच रहे हैं कि ये मेरा संपत्ति है, ये मैं मालिक हूं, ये बड़ा, और मुझे बड़ा मालिक बन जाना है। कुछ भी हो, वास्तव में उसका ओरिजिनल जो उसका स्वामी कौन है? भगवान है। लैंड आपने थोड़ी उसको क्रिएट किया, नहीं किया ना। कुछ जमीन आप लेते हैं, कुछ घर लेते हैं, वो आपने थोड़ी क्रिएट किया, नहीं, कुछ नहीं किया आपने, वो था पहले से। हाँ, तो किसी तरीके से किसी के हाथ में आया, बस उस तरीके से आपके हाथ में आ रहा है। तो उसका वास्तव मालिक कौन है? भगवान जी। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे थे? अमेरिका जो बोलते हैं ये हमारा भूमि है, हमारा जमीन है, अमेरिका का जो देश, पहले कहाँ था वो? अमेरिका तो पहले से था। ये लोग आए उधर और वहां सेटल हो गए। वो पहले बोलने लगे ये भगवान का भूमि है, सबको सबको हक है जीने का। उसके बाद वहां जाके उन्होंने अपना नियम बदल लिया। क्या बोल रहे हैं? अभी नहीं, अभी तो केवल हमारा है और किसी को आना नहीं है इधर पे। पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ चाहिए, बस हो गया। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इतने सारे देश में इतना सारा जो है पॉपुलेशन इतना ज्यादा है उसमें, वहां पे, वहां से लोग यहाँ पे इतना खाली खाली पड़ा हुआ है। देखिए अमेरिका का जो पूरा टोटल जो आबादी है वो लगभग 30 करोड़ है। इंडिया का 140 करोड़ है। और अमेरिका इंडिया का जो लैंड का हिसाब से देखेंगे, अमेरिका 3 गुना बड़ा है इंडिया से। ठीक है, 2.5 3 टाइम्स बिगर। प्रोपा यही बोल रहे हैं, जहां पे ज्यादा आबादी है वहां से, जहां पे लोग कम है वहां पे जा सकते हैं, वहां पे और डेवलप कर सकते हैं। नहीं नहीं, आपको नहीं आना। देखे ट्रम्प क्या कर रहे हैं अभी, जो लोग हैं उसको भेज रहे हैं बाहर, ये हमारा देश है। देख रहे हैं ना? तो हम जो न्यूज देखते हैं सब समझना है प्रभुपा जी क्या बोल रहे हैं सब यहाँ पे। आप तो राइट टू हैप्पीनेस बोलते हैं, अपने आप जो है आप इतना सारा चीजें गलत कर रहे हैं। दूसरे का प्रॉपर्टी आपने हड़प लिया। हाँ, वो कोई दूसरे आदिवासी थे उधर, उनको मार के आपने उसको हड़प लिया। हाँ, अभी दूसरों को अंदर आने के लिए आप रोक रहे हैं। ये कैसा नियम है आपका? हाँ, प्रभुपा जी क्या बोलते हैं? रोगिज्म इज द फिलॉसफी। हिंदी में क्या बोलते हैं? रोगिज्म। हाँ, दुष्ट क्या बोलते हैं उसको? हिंदी में रोगिज्म। रोगिज्म। शठता।
शठ था, हाँ शठ, शठता, शठ, शठ यानी कि पूरा षड्यंत्र जैसे काम करना, षड्यंत्र करना। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लिविंग ऑन समबडी एल्स प्रॉपर्टी, और आप वो हमारा प्रॉपर्टी बोल के बोल रहे हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा जो फाउंडेशन ही ठीक नहीं है। प्रॉपर वो बोल रहे हैं राइट टू हैप्पीनेस कहाँ आएगा? आपने जैसे किसी का दूसरा का संपत्ति हड़प के आपने जीवन जी रहे हैं। कोई भी जो है कभी भी आप जो चोरी हुआ माल में, चोरी हुआ जो आइटम से जो है कभी आप शांति में रह सकते हैं क्या? आपने चोरी कर लिया कुछ, आपने हमेशा अंदर में रहेगा ना चिंता, पुलिस कब आएगा, कोई देख लिया तो, किसी को पता चल गया तो, यही तो डर होता है हमेशा मन के अंदर। तो आपने पहले अपना जो इधर आए हैं एक अलग तरीके से आए हैं और इधर पे नियम बना रहे हैं। हाँ, चोरी वैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, 3 बड़े चोर थे और बैंक लूट लिया उन्होंने, और बस भागते गए बहुत दूर। भागने के बाद सब लोगों ने जो है बैठा एक जगह पे, बोले कि देखो हमने सब बड़ा माल लुटा है, इस टाइम में बहुत पैसा हमने हमारे पास है, बहुत ईमानदारी से इसको बांटना है, ठीक है? लूटने का टाइम में ईमानदारी नहीं था, जब बांटने का टाइम में ईमानदारी, क्या बात है। पूर्व जी बोलते हैं ऐसा ईमानदारी है। स्टोलन प्रॉपर्टी तो डबल चोरी माल है वो, उसके बाद उसके उसमें ईमानदारी, क्या बोल रहे हैं बड़े बड़े बातें। तो अमेरिका इसे बहुत बात करता है, बस लूटा हुआ जो जगह है वो, हाँ, और ईमानदारी क्या बात बोल रहे हैं अभी। तो क्या वैल्यू सिस्टम है उनका, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट रीड, विनायक जी आप पढ़िए। American motto is one nation, one under God. One American motto is one nation under God. Srila Prabhupada. Yes, that is Krishna consciousness. There should be one nation under God and one world government under God as well. Everything belongs to God and we are all his sons. This philosophy is wanted. BTG. But in America, people are very much afraid of a central government because they think that whenever there is a strong government, there will be always be tyranny. Srila Prabhupada. If the leaders are properly trained, there cannot be tyranny. But Not one tyranny, tyranny, sorry, tyranny. But one of the premises of the American system of government is that if a leader has too much power, he will inevitably become corrupt. Srila Prabhupada. You have to train him in such a way that he cannot become corrupt. What is the training process? The training is the Varnashrama Dharma. Divide the society according to the quality and train people in the principle that everything belongs to God and should be used in the service of God. Then there really can be one nation under God. But if the society is divided into different groups, won't there be envy? No, no. Just as in my body, there are different parts that work together. So the society can have different parts working for the same goal. My hand is different from my leg, but when I tell the hand, bring a glass of water, the leg will help. The leg is required and the hand is required. But in Western world, we have a working class and a capitalist class, and there is always warfare going on between the two. Yes, the capitalist class is required and the working class is also required, but they are fighting because they are not trained up. They have no common cause. The hand and the leg work differently, but the common cause is to maintain the body. So if you find out the common cause for both the capitalists and the workers, then there will be no fighting. But if you do not know the common cause, then there will always be fighting. Revolution, yes. Then the most important thing is to find the common cause that people can unite on. Srila Prabhupada, yes. Just like in our Krishna conscious society, you come to consult me about every activity because I can give you the common cause. Otherwise, they will be fighting. The government should be very expert to know the aim of life, the common cause, and they should train people to work for the common cause. Then they will be happy and peaceful. But if people simply elect rascals like Nixon, they will never find a common cause. And rascals can secure votes by some arrangement and then they become the head of the government. The candidates are bribing, they are cheating, they are making propaganda to win votes.
somehow or other they get votes and capture the prime post. This system is bad. Enough. Yes, enough. So what is the next point? American motto, one nation under God, बोल रहे हैं. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हाँ ये ठीक है, दिस इज व्हाट कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स. भगवान के अधीन में हमें अपना शासन करना है, अपना सरकार चलाना है ना, क्योंकि सब चीजें भगवान का ही है ना. दैट इज द फिलॉसफी. ठीक है. तो व्हाट इज द कंसर्न बीटीजी एडिटर इज हैविंग? One nation, one God is concept is correct, good, but what is the concern the Americans have? The concern is that if Americans are always afraid of a very strong government, because with a very strong government, the officials will become very powerful, and then they will have too much power and become corrupt. So that is the problem. So point is, if 1 second, tyrannical. Yeah, tyrannical means it means अथॉरिटेरियन, बॉसी ना, पूरा ज्यादा अपना ट्रम्प बन गया. ट्रम्प बन गया ना, पूरा बॉसिंग कर रहा है ना, तो पावरफुल हो जाते हैं, बॉसिंग करते हैं सब लोग. तो ये उनको डर है. तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, इफ द गवर्नमेंट लीडर्स आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड, अच्छा ट्रेनिंग हुआ तो ऐसा नहीं करेंगे वो, है ना. तो उनको अच्छे से ट्रेन करना है, करप्ट नहीं बनने का. तो क्या प्रोसेस है ट्रेनिंग करने का? What is the process? How to train? वर्णाश. So the process is to it has to be divided and it's belongs to पॉलिटिक्स, गुणों के आधार पर वर्णाश्रम. वर्णाश्रम जो अभी हमने बात किया ना, समाज को 4 वर्ण 4 आश्रम में विभाजन करना है. वर्ण क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी. तो ये गुण कर्म के हिसाब से आपको विभाजन करना है. और वर्णाश्रम का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? यही तत्व सिखाना है सबको. एवरीबॉडी शुड बी टॉट एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड. हर चीज भगवान का संपत्ति है, भगवान के सेवा में हर चीज को लगाना है. वही जो फॉर्मूला मैं समझा अभी, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग टू बी यूज्ड फॉर कृष्णा सर्विस. भोक्ता आराम, भगवान ही सब भोक्ता है, भगवान ही सबका मालिक है. ये बात समझा रहे हैं सबको. तभी क्या होगा? वन नेशन अंडर वन गॉड विल बी पॉसिबल. तो इसको समझ में नहीं आया एडिटर को? नहीं, अलग अलग लोग हैं, अलग तरह के दिमाग चलता है उनका, क्या करें. लोग जो है लड़ेंगे. तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, क्या बोलते हैं? बॉडी में क्या है? बॉडी में अलग पार्ट है, हाथ है, पैर है, अलग अलग कार्य करता है. जब हमें प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, मैं किसी को बोलूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? मैं उठूंगा ना, उठ के मेरा पैर चलेगा, उसके बाद मेरा हाथ जहाँ पे पानी है वो पहुंचेगा, और पानी जो ग्लास में डाल के लेके आऊंगा, फिर से चल के आऊंगा. यानी कि पूरा बॉडी एक काम करने के लिए कोऑपरेट कर रहा है ना. तो ठीक उसी प्रकार कोई भी जो अलग अलग जो डिवीजन होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सब एक कॉमन सेंटर, कॉमन कॉज है. प्रभुपाद यही बोल रहे हैं. हमारा सेंटर अलग अलग नहीं है, सेंटर है कृष्णा. उनको तृप्त करना है, उनको संतुष्टि करना है. ये हमारा उद्देश्य होने से क्या होगा? फाइटिंग नहीं रहेगा, भिन्नाभिप्राय नहीं रहेगा. हम जो है एक ही उद्देश्य के साथ कार्य करेंगे, कॉमन कॉज रहना है. जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब अब सब लोग मेरे पास आते हो, क्यों? क्योंकि मैं आपको वो भगवान सेंटर जो कृष्णा जो है उनका सेवा कैसे करने में समझा रहा हूं. क्योंकि हर आदमी का इस मटेरियल वर्ल्ड में
Everybody wants to work in their own fashion. हर व्यक्ति को he wants to do everything in their own way. इसलिए क्लैश होता है. घर में होता है, husband wants something, wife wants something, clash. तो सेंटर कृष्णा रहेंगे ना, तो दोनों एक जगह जा रहे हैं. हमारा विचार किस तरीके से सेवा करना अलग हो सकता है, परंतु सेंटर क्या है? कृष्णा है. जैसे हमारा मंदिर में हम सब अलग अलग सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग अपना हमारा विचार होगा, फिर भी सेंटर कृष्णा है. ये पॉइंट है, राइट? सो गवर्नमेंट को प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्सपर्ट होना इस तरीके से, कॉमन कॉज सबको भगवत सेवा में लगाना है, तभी तो समाज में शांति और सौहार्दता रहेगा. तो नहीं तो बस सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो शांति कहाँ रहेगा? केवल लोग वोट के लिए लोगों को रिश्वत देंगे, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, मिनिस्टर बन जाएंगे, बस यही चलता रहेगा इस तरीके से. और कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, आप उसको कंप्लीट करिए, बाद में हम यही समाप्त करेंगे. ठीक है? तो another 1.5 pages is there, you read yourself. ठीक है? Fine. So I want all of you to read. ठीक है? Next chapter is peace formula. Anyway, small chapter. We'll continue with next next session and take the next chapter also. ठीक है? So hope everybody is chanting every day. Renuka ji, you're chanting. हाँ प्रभु. How many rounds? I'm doing 12 rounds. Very good. Continue. कभी अगर छूट जाता है तो next day I'm trying to cover it up. Very good. Very good. Fine. Try to say that you do it the same day. Whatever emergency, sometimes it happens. Okay. But try to cover it. Krishna is watching. That is the main thing. Paramatma is watching. आप क्या कर रहे हैं? भगवान का नाम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं? कोई देख नहीं रहा है, वो अलग बात है. भगवान तो देख रहे हैं. भगवान देख रहे हैं, आपको पता है. है ना? दो लोगों को पता है. आपको पता है और भगवान को पता है. आपके हस्बैंड को पता है, पता नहीं, अलग बात है. आपको रिश्ते को पता है, पता नहीं, अलग बात है. आपको बच्चों को पता है, पता नहीं, दैट डजंट मैटर. भगवान को पता है, प्रभुपाद जी को भी पता है. Because you're trying to follow Prabhupada's instructions, Prabhupada also knows. So 3 people knows. Prabhupada knows, Krishna knows. Because you're following this because of Prabhupada's order. आपका यही इच्छा है ना 12 राउंड से, और प्रभुपाद जी का जो आदेश है 16 माला तक आना है कम से कम. ये हमारा टारगेट है, एम है, गोल है. That way, Prabhupada knows, Krishna knows, and you know whether you are sincerely chanting or not. ठीक है? चलिए, तो विनायक जी आपका हो रहा है chanting? We am trying to come back to 12 now. अभी ब्रेक हो गया था बीच में हॉस्पिटल में. अच्छा, okay. You're still trying to come back or you already come back? Huh? They still trying to come back on 12. When you'll come back? By when? This week you can come back? This week like I can come back. Please come back. Important. Chanting is the main, activity in our life. Important energetic activity, which will give you everything. Good sense, good knowledge, good understanding, good direction. And whatever is lacking, Krishna will provide. Have that faith. Sure. Not simply exaggeration, it is a fact. Because not chanting means you are not taking help of Krishna in your problem solving. If you're chanting Krishna, Krishna will only see, oh, he's giving time to me. I will see how his problems are solved. If a child thinks it can solve its own problem, how much it will solve its problem? It has to depend on parents. Like that. We are depending on our Father Krishna. And Krishna is ready to help. Right? So that is how chanting is. So never give up chanting. Never, Sure. your commitments. Please come back, in this week only and start continuing to do that every day. Then you see how things will change in your life. Okay, chaliye. Close again. We'll continue next. Quickly, I want to show you the
3D model of Vrindavan Chandrodaya Mandir that we have done. Yeah, why not? Sure. I'll just share my screen. Yeah. I am allowing you, please. So this is the project that we have done for Sun City. Achha, I'm not able to see. I'll share again. So this is the project that we have done to run for the Sun City projects. Okay. Okay. So we can see Sun City Anantamaya, their complete master plan. And then we have mapped all the landmarks for Sun City, for Vrindavan, including all the college and universities, hospitals, hotels. Okay. So when I click on temples, we have mapped all the temples of Vrindavan. If I click on VCM, so that's VCM. Okay. Oh. Good. This is a actual image from the Google. So we have done it using the actual images, the photographs, Achha. the existing structure. Oh. Okay. Just the exterior Okay. and the villas around. Madhav Kutir. Okay, good. So similarly, for all the temples, we have done the 3D models. So we can give a tour of entire Vrindavan to anyone. Really? Very good. That's Prem Mandir. Oh, very nice. You can go inside also. And Krishna Janmabhoomi, Baki Bihari Temple. Inside we can go? No, inside, no. Inside can also be done, but we haven't done. It is just the exterior part. Achha. Okay. So inside we can cover like this. The actuals we can cover using 360-degree views like this. So we can shoot the 360-degree images. Oh. This is Janmasthan, no? This college. This is Sun City Anantam project. Okay. So this way we can do 360-degree views as well for interiors or exteriors. Okay. Understood. Nice. So we are ready with this, Prabhuji, and if required, like I can share the 3D model of Vrindavan Chandrodaya Mandir. If it can be beneficial for the temple in any ways. Definitely. Please share. Good. Well done. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Very good. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna.